সুপ্রভাত। এই মিনিট 20 আগে ঘুম ভাঙলো আর কি। কোনো নেশা করিনি, ওই দু একটা ওষুধ খাচ্ছি তো হতে পারে যে তার ঘোরে আর কি একটা নেশা নেশা ব্যাপার আছে। আসলে হাওয়াতে এখন নেশা আছে, হাওয়ার মধ্যে না এখন খুব নেশা আছে। ও হাওয়া কিভাবে বইছে, মাথার পিছনে আমার ছাদ, যেখানে শুই মাথা করে, সেই মাথার পিছন দিকটা ছাদ। ছাদের দিকে জানলা খুললে হাওয়া দেখছি বইছে না, আসছে না, ঘরে ঢুকছে না। আবার এই দিকের জানলাটা খুললে দেখছি এখান থেকে ঘরে হাওয়া আসছে। তো এই জানলাটার সামনে বসেছিলাম। সামনেই যে বাড়িটা, আমাদের প্রতিবেশী, ওনাদের একটা গোয়াল ঘর আছে। তো বুঝতেই পারছো তোমরা যে রাত্রিবেলা যখন ঘুমোচ্ছি, দিনের শেষে আমরা সবাই, সামনেই ভোট, আর 20 দিনও বাকি নেই, তো মাথায় ভোট ভোট ব্যাপারটা ঘুরছে, আমার মাথাতেও ঘুরছে। তো এই সকালবেলা ঘুম থেকে উঠে হাওয়া খাবো বলে বসলাম পাশের বাড়িটাতে, যেখানে গোয়াল ঘর আছে। তো সেই গোয়াল ঘরের দিকে তাকিয়ে কিছু মনে পড়ে গেল, কিছু বলতে ইচ্ছা হলো। ভারতবর্ষের সবচেয়ে বড় গোয়াল ঘরটা কোথায় আছে কেউ জানো? মনে হয় সবাই জানো। ভারতবর্ষের সবচেয়ে বড় গোয়াল ঘরটা আছে হচ্ছে নাগপুরে। সেখান থেকে নাগপুরের গোয়াল ঘরে অনেক গরু আছে। সেই গরুগুলোর মধ্যে পার্টিকুলারলি দুটো গরু তৃণমূল আর বিজেপি 2018 সাল থেকে আমাদের পশ্চিমবঙ্গে দাপিয়ে বেড়াচ্ছে। আমরা সবাই জানি তৃণমূল 11তে ক্ষমতায় এসছে, কিন্তু এই যে বললাম দুটো গরু একসাথে, তাই জন্য সালটা আলাদা আলাদা করে না হলে বলতে হয়। একসাথে 2018 কী হয়েছিল? একটা ভোট ছিল, পঞ্চায়েত ভোট। তার আগে অবধি বিজেপির হাওয়াটা এই জানলা দিয়ে যেভাবে আমার ঘরে হাওয়া ঢুকছে ওইভাবে পশ্চিমবঙ্গে ঢুকতে পারেনি। তো এখান থেকে এই দিকে তাকিয়ে আরেকটু দূরে গেলে রেল লাইন পড়ছে, যার ওই পাটটাকে নবগ্রাম বলে। ওটা নবগ্রাম আছে, কানাইপুর গ্রাম পঞ্চায়েত আছে, পাঠডানকুনি আছে, দিল্লি রোডের কাছ অবধি। এই এলাকাটাতে পঞ্চায়েত ভোট হয়, আমাদের এদিকটাতে হয় না, আমাদের এদিকটা তো মিউনিসিপ্যালিটি। তো এই পঞ্চায়েত ভোট হয়েছিল 2018-তে, যখন গোটা ভারত দেখেছিল যে 2016-তে পশ্চিমবঙ্গের বিধানসভায় বিরোধী হিসেবে থাকা বামপন্থীরা বা সিপিআইএমের সমর্থকরা কীভাবে রাস্তায় রাস্তায়, গ্রামে গঞ্জে, রাস্তায় রাস্তায় পড়ে মার খাচ্ছে তৃণমূলের দুষ্কৃতীদের হাতে, দেখেছিল। ভয় ধরে গেছিল সবার। আর কি করে বিরোধিতা করবে সিপিএম? যেখানে দেখছে সেখানে ধরে স্যাটা ভেঙে দিচ্ছে। কি করে সিপিএম আর বিরোধীর জায়গায় থাকবে? তাহলে কোনো বিরোধী নেই বাংলায়। 2018-তে ছিল। গোটা ভারত দেখলো ওই টিভি মিডিয়ার চোখ দিয়ে বিজেপি নামক একটা দলের কিছু লোক পশ্চিমবঙ্গে বুক ফুলিয়ে পঞ্চায়েত ভোটে তৃণমূলের বিरोधिता করছে। এটা मीडिया देखलो, गोटा देश देखलो। पूरा देश ने देखा कि सीपीएम जब तृणमूल के हाथ में मार खा रहा है, जब पीट रहा है, तब बीजेपी सीना तान के बंगाल में घुस के बोल रहे हैं कि हम हैं यहाँ पे 2018 पंचायत वोट। और हमने क्या देखा? हमको, हमारे दोस्तों को जो एक्टिवली एसएफआई, डीवाईएफआई या फिर सीपीआईएम का पॉलिटिक्स में थे, ওদেরকে মারছে, রাস্তায় ফেলে মারছে। আর পুলিশ আর টিএমসি
রাস্তা করে দিচ্ছে বুথের দিকে বিজেপি সাপোর্টারদের যাওয়ার। 2018 नागपुरेर सबसे बड़ो गरुटा पश्चिम बांग्लाয় ढुकलो। नागपुर का सबसे बड़ा गाय बंगाल में ऐसे घुस गया। ऐसे नहीं, सिर्फ वोट में ऐसे नहीं, আর কি করলো? 34 বছর সিপিএমের শাসন ছিল। দুটো মুখ্যমন্ত্রীকে পেয়েছে সিপিএম, জ্যোতি বসু 5 বারের মুখ্যমন্ত্রী, আর বুদ্ধদেব ভট্টাচার্য আপনারা জানেন 2 বারের মুখ্যমন্ত্রী। বুদ্ধদেব ভট্টাচার্য ব্রাহ্মণ, ওনার শেষ যে ইলেকশানে উনি জিতেছিলেন 2006, 235টা সিট ছিল বামফ্রন্টের, যদি খুব ভুল না করি। तो बंगाल में 235 सीट सीपीएम को 2006 में मिला था। 235 सीट जो आज तक तृणमूल को नहीं मिला। तो समझ रहे हो आप सब लोग, उस 235 सीट में वोट मुस्लिम का भी रहा होगा। लेकिन एक दिन के लिए भी कभी किसी ने देखा, कभी किसी बीजेपी वाले का ये बोलने का, दिखाने का हिम्मत है कहीं से एडिट करके ये बुद्धदेव भट्टाचार्य मुख्यमंत्री हमारे जो थे, वो बुद्ध बाबू कभी सर पे फेस टोपी डाल के नमाज अदा करके वोट मांगे थे? ऐसा कुछ किए थे? या कभी दुर्गा पूजा की भाषण को रोक के, मुहर्रम के मिছিল को, रैली को पास करने के लिए दुर्गा पूजा के विसर्जन को रोक दिया था? ऐसा कुछ किसी ने देखा था 34 साल में? नहीं। किसने शुरू किया? কে শুরু করলো? আমাদের পিসি, আমার নয়, আমাদের সবার পিসি মমতা ব্যানার্জি। মহরম হবে, মহরমের মিছিল যাবে, তাই দুর্গা পুজোর ভাসান স্থগিত থাকবে। বিজেপি জমি পেল। রেড রোডে প্রায় প্রতিবার সেই থেকে নিয়ম করে আজ অবধি, এই বছর অবধি উনি যান, একজন ब्राह्मण महिला, एक ब्राह्मण औरत सर पे हिजाब डाल लेती है, हाथ ऐसे करके जैसे दिखाती है उनको वो कलमा पढ़ रहे हैं। इससे क्या होता है? इनसिक्योर फील करते हैं बंगाल के एक कम्युनिटी, एक रिलीजियन जो है हिंदू, सारे नहीं लेकिन बहुत सारे। उस इनसिक्योरिटी अगर ममता बनर्जी आरएसएस के इशारे में बना नहीं पाते तो बीजेपी का यहाँ पे ज़मीन बन नहीं पाता, कोई चांस नहीं था। एक तो पहले से फिक्स किया हुआ एजेंडा कि हम सीपीएम को जब मारेंगे तब तुम सीना तान के घुसना, ताकि देख के लगे कि बीजेपी को टच करने का भी हिम्मत ममता का नहीं है, बीजेपी का हिम्मत उससे ज़्यादा है। और दूसरा, इस तरह से हिंदू कल्चरल प्रोग्राम के ऊपर जो मुस्लिम कल्चरल प्रोग्राम है उसका प्रायोरिटी देना। ऐसे ममता बनर्जी ने एक इमेज बना लिया कि वो मुसलमानों का चीफ मिनिस्टर है। बोलते हैं हिंदुओं का भी हूँ, किंतु এই যে ইমেজটা উনি বানালেন, এই ইমেজটা থেকে গেল, মানুষের মন থেকে গেল না। 2018তে বিজেপির পঞ্চায়েতে যে সাহসটা দেখালো, সেই সাহসটা দেখে 2019 লোকসভাতে বিজেপি কটা সিট পেল কারোর মনে আছে? তাহলে বলবেন। আমার যতদূর মনে হয় 18টা। ওয়েস্ট বেঙ্গলে 42টা সিটের মধ্যে 18টা, প্রায় 50%, প্রায় হাফ, almost half seat BJP gained in 2019 लोकसभा इलेक्शन। उसके बाद 19 के बाद बीजेपी का एक स्लोगन था, एक पॉलिटिकल लाइन था, जो वो 21 के विधानसभा से पहले हर जगह में, हर दीवार में लिखते रहे। क्या? 19 में हाफ, 21 में साफ। कौन? टीएमसी। अच्छी बात है, लोगों को और अच्छा लगा और उम्मीद आया लोगों के मन में कि चलो 21 में बीजेपी तृणमूल को साफ कर देंगे। इस बीच में क्या हुआ? 19 से 21 के बीच में आ गया 2020, यानी कि कोविड आ गया, लॉकडाउन आ गया, लोगों का एक एक करके मरना कोविड में आ गया,
इकोनॉमी में इफ़ेक्ट, पूरे दुनिया में उसके साथ साथ, इंडिया में उसके साथ साथ, बंगाल में। ये लॉकडाउन के टाइम बीजेपी ने क्या किया, कोई छानबीन करके देख लो, मुझे बताना नहीं है बीजेपी ने लॉकडाउन में क्या किया। मेरे हिसाब से 18 MP, 18 मिनिस्टर जिस पार्टी का बंगाल में था, उसने लॉकडाउन में कुछ किया ही नहीं। वहीं से फिर से शुरुआत हुआ एक उम्मीद CPM वामपंथी का वापस आने का। कैसे? যাদবপুরে বিবেক অগ্নিহোত্রী দাঁড়িয়ে বলেছিলেন ওনার সিনেমা বুদ্ধিস্ট ইন ট্রাফিক জ্যামের উনি যখন ওখানে প্রচার করতে গেছিলেন, प्रचुर সেখানে बाधा পেয়েছিলেন। तो विवेक अग्निहोत्री ने जादवपुर में बोला था कि जो देश के साथ है वो मेरे साथ है, और वो ABVP का स्टूडेंट था जादवपुर में। कुछ ही लोग हैं, होते हैं, आई मीन अभी बड़े हैं, तब कुछ ही लोग थे। और जो उधर खड़े हैं वो लेफ्ट स्टूडेंट ऑर्गेनाइजेशन के स्टूडेंट, वो देश के खिलाफ है। आज भी वो वीडियो यूट्यूब में है, किसी को चाहिए तो मैं लिंक भेज दूंगा। तारपरे की होलो, उसके बाद क्या हुआ, जो देश के खिलाफ थे यानी कि लेफ्ट ऑर्गेनाइजेशन के स्टूडेंट बंगाल के, जादवपुर के, बंगाल के हर जगह के हर कोने में, वो स्टूडेंट कोविड के टाइम बिना किसी सरकारी मदद के अपने जान को दांव में लगाकर लोगों के घर घर ऑक्सीजन सिलेंडर लेके पहुंच गए। किसको कब हॉस्पिटल में एडमिट करना था, किसको कब कुछ इमरजेंसी था, SFI और DYFI के लोग और CPIM के लोग भी पूरे बंगाल में घूमते रहे। आज भी लोग, यहाँ के लोग वो बात भूले नहीं। जब बीजेपी गायब हो गया था तब वो लोग, वो CPIM, वो वामपंथी जो ज़ीरो हो गया था, जिसका शून्य था, वो लोगों के लिए अपना जान दांव पे लगाकर कैसे बाहर निकल गए थे। कुछ बच्चे मेरे उम्र के, मुझसे भी छोटे या मुझसे थोड़े बड़े, उनको बोला जाता था रेड वॉलंटियर्स। ये रेड वॉलंटियर नींव बन के CPIM को कुछ कुछ सीट्स में थोड़ा सा वोट में आगे बढ़ाया। 2021 से पहले बीजेपी का ये स्लोगान था, 2 स्लोगान था एक्चुअली। फर्स्ट था 19 हाफ तो 21 साफ, और दूसरा था 21 राम तो 26 में बाम। सबने सोचा शायद बीजेपी इस बार 21 में साफ कर देगा। नरेंद्र मोदी, अमित शाह जैसे लोग इतने बार बंगाल में आए कि इससे पहले ऐसा कोई भी इलेक्शन में कांग्रेस के टाइम से लेकर अभी तक के टाइम पे, वाजपेयी के गवर्नमेंट में कोई ऐसा हिस्ट्री नहीं था कि इतने बार देश के प्राइम मिनिस्टर इलेक्शन कैंपेन के लिए बंगाल आए। इतने बार। 21 का रिजल्ट क्या था, TMC 212 साफ करने का बात बोला था, बहुत लोगों ने माना भी था। तो तृणमूल 212, बीजेपी 77। कैसे, क्यों इतना ज़्यादा हिंदू मुस्लिम का हवा तब बंगाल में चल रहा था, हिंदू मुस्लिम, फिर भी बीजेपी को सक्सेस नहीं मिला। क्यों? उस क्यों का रीज़न उस 19 से 21 के बीच में जो 18 MP थे बीजेपी का, उसके नाकामयाबी में छुपा है। जो उनको लगा कि लोग शायद से देखेंगे नहीं, वो सिर्फ प्रोपागंडा को ऐसे करके खाते रहेंगे और काम बनता जाएगा। तो काम बना नहीं 21 में। फिर भी ये बात चलता रहा, इलेक्शन मिट गया, बीजेपी 77 सीट लेके अपोजिशन में था और तृणमूल 212 सीट लेके गवर्नमेंट बनाया। लेकिन फिर भी बीजेपी का ये बात चलता रहा और बहुत लोग इसको मानते भी रहे, इसको अपने अंदर ऐसे लेते भी रहे कि पहले बीजेपी को आना पड़ेगा, यानी कि पहले राम को आना पड़ेगा, फिर लेफ्ट आएगा, फिर ही लेफ्ट आ सकता है।
इस बीच क्या हुआ, 21 में तृणमूल बहुत बड़ी जीत हासिल किया। उसके बाद तारपरे बगटुई, रामपुरहाट, बीरभूम डिस्ट्रिक्ट आग जलने लगा, घर जलने लगा, पूरा एक गांव ऑलमोस्ट जलने लगा। लोगों ने देखा कि ऐसे जीतने का असर क्या होता है। मेजॉरिटी में गांव जला दिया। उसके बाद एजुकेशन मिनिस्टर पार्थोदा, करप्शन इस तरह से सामने आने लगा कि कोई सोच भी नहीं सकता। एजुकेशन मिनिस्टर करप्टेड होने के लिए सीबीआई ने ईडी ने उनको अरेस्ट किया, तिहाड़ में डाल दिया। फिर बीरभूम का तृणमूल का सबसे बड़ा लीडर, संगठक बोलना चाहिए, खुद को वो ही बोलते हैं, पागल है वो थोड़ा सा, अनुब्रत मंडल को भी गाय पचार के लिए, गाय को बॉर्डर पार करवाने के लिए बांग्लादेश तक इलीगली अनुब्रत मंडल को भी जेल में डाल दिया गया। उसके बाद क्या हुआ, के मिस मैनेजमेंट की वजह से के जैसे सिंगर का मौत हो गया 2022 में यहाँ पे। उसके बाद नौकरी का एग्ज़ाम में घोटाला हुआ, ये मामला सामने आया। लोग 500 दिन तक, 500 डेज तक कोलकाता के कुछ जगहों में बैठ के अनशन करते रहे। लोग नहीं, वो लोग जो गवर्नमेंट एग्ज़ाम में पास हो गए थे और जिनके बदले किसी मिनिस्टर के बेटा बेटी को नौकरी मिल गया था, या फिर ऐसे किसी लोगों को जिन्होंने सिर्फ पैसा दिया था, शायद एग्ज़ाम तक नहीं दिया था। ये घोटाला सामने आया, इतना सारा बात सामने जमा हुआ तो लगा कि 2024 में 2024 में बीजेपी इस बार लोकसभा में इतना मेजॉरिटी लेगा और इतना अच्छा रिस्पांस बनाएगा कि टीएमसी तो हटेगा। लेकिन क्या हुआ, 2024 का इलेक्शन आया, लोगों ने फिर सीपीएम को छोड़ के बीजेपी में भरोसा किया और रिजल्ट क्या हुआ, बीजेपी को 18 से 12 सीट मिला, बाकी तृणमूल का। इससे क्या समझ आता है, बीजेपी इतने लोगों को जेल में घुसाया तृणमूल के, क्या इनके पास कोई एविडेंस सच में नहीं है कि ये बीजेपी ममता बनर्जी और अभिषेक बनर्जी को जेल में डाल पाए या फिर कटघरे में खड़े कर पाए। बहुत सारे एविडेंस है, लेकिन वो करेंगे नहीं। क्यों नहीं करेंगे, क्योंकि वही जुड़ा हुआ है ना, दोनों गाय नागपुर से। ऑर्डर ही नहीं है हेड ऑफिस का, इनको मत छुओ, तुम आ गए तो तुम कामयाब नहीं हो सकते। सच में तुम्हारे हाथ पकड़ के नहीं, तुम्हारे आने के बाद ही यहाँ पे सीपीआईएम को लोग जगा देंगे। इससे बेहतर है जो है हमारे आरएसएस की जो देवी दुर्गा है, उनको रहने दो, उनको मत छेड़ो, उनको रहने दो। इसका असर क्या हुआ, तृणमूल रहा बीजेपी विरोधी बन के रह गया लोकसभा में, वोट परसेंटेज विरोधी का कम हुआ, सीपीआईएम का थोड़ा सा बढ़ा, क्योंकि लोगों का भरोसा धीरे धीरे इस तरह आने लगा कि ये दोनों मिलके कुछ कर रहे हैं, नहीं तो आज तक ममता बनर्जी जेल में होते। फिर তারপর আরজি কর 2024-এ আরজি করের মতো ঘটনা, যেটা গোটা বাঙালি জাতির माथा लज्जाয় हेट করে দেয়। आरजी कर सबको पता है, आरजी कर गाड़ीटा, आरजी कर का जो वैन था जिसमें डेड बॉडी लेके पुलिस खुद जलाने के लिए जा रहे थे, उसको रोका किसने, सीपीआईएम ने। मैं नाम ले ही लेना चाहता। उस गाड़ी को जिसने रोका, जिसके वजह से आज पूरी दुनिया को पता चला
कि वहाँ पे कोई सुसाइड नहीं, एक रेप एंड मर्डर हुआ था ब्रूटली हॉस्पिटल के अंदर। वो इंसान कोई और नहीं थे, मीनाक्षी मुखर्जी थे, हमारे उत्तरपाড়া के कैंडिडेट। আমাদের উত্তরপাড়ার ক্যান্ডিডেট মীনাক্ষী মুখার্জি ওই গাড়িটা আটকে ছিল, তার সাথে আরও সেখানে ধ্রুবজ্যোতি সাহা এবং দেবাঞ্জনদের মতো কিছু এসএফআই এর ছেলে মেয়ে সেখানে ছিল। आंदोलन शुरू हलो, जगह जगह मास मूवमेंट चालू हुआ, लोग निकले साथ में। तृणमूल भी जस्टिस मांगता रहा। और क्या हुआ, कुछ टीएमसी के लोग, जिसको पुलिस ने बाद में आइडेंटिफाई किया कि ये टीएमसी के लोग हैं, उन्होंने क्या हुआ, सीपीआईएम का जो यूथ संगठन है, युवा संगठन है डीवाईएफआई, उनके फ्लैग लेके आरजी कर में जाके कुछ तोड़ फोड़ करके आए, जिसके लिए जो एविडेंस है वो नष्ट हो गया। ये है हमारे स्टेट की हालत। बीजेपी ने क्या किया, बीजेपी भी उस प्रोटेस्ट में शामिल करने के लिए आए तो लोगों ने भगा दिया। क्यों? बोला कि आप हथरस किए हो आपने यूपी में, हथरस आपके उत्तर प्रदेश में हुआ है, आप तब बंगाल में कितना रैली निकाला हथरस के खिलाफ। उन्नाव आपके गवर्नमेंट में हुआ है, आसिफा को मंदिर में रेप करके मर्डर किया है, एक इतनी छोटी बच्ची को। आपके गवर्नमेंट ने, आपके लोगों ने बंगाल में कितना रैली निकाला आसिफा के रेप एंड मर्डर के खिलाफ, कितना रैली निकाला। एक के बाद एक घटना है जिसमें बीजेपी मर्डरर्स को एंड रेपिस्ट को खास करके माला डालते रहे। अगर दलित का किसी जीभ काट लिया यूपी में, जीभ काट लिया किसी दलित का, तो उनको माला डालते रहे। अगर किसी भी लोअर कास्ट में कोई भी टॉर्चर किया तो उनको माला डालते रहे। এখানে ব্রিগেডে গীতার অনুষ্ঠানে রিয়াজুল বলে প্যাটিস বিক্রেতাটাকে যে মেরেছিল সৌমিক গোলদার, যদি নামটা না খুব ভুলে যাই, খুব সম্ভবত সেই ছেলেটাকে বিজেপি নিজেদের পার্টি অফিসে বসিয়ে সম্বর্ধনা দিয়েছিল। কেন না, রিয়াজুলকে মারার জন্য, হিন্দুদের হয়ে লড়ার জন্য। দিস ইজ বিজেপি ইন ওয়েস্ট বেঙ্গল। তো এই আরজি করের পরে 26,000 लोगों चाकरी बातिल होने घटना, 26,000 लोगों का नौकरी जिनको मिला था विदाउट एनी एविडेंस, घोटाला हुआ था, इसलिए सुप्रीम कोर्ट भी उनके लिए कुछ नहीं कर पाए। 26,000, एक दो लोग नहीं, सरकारी नौकरी। এই সব কিছুর পরে আফটার অল দিস প্রচুর মানুষ আছে যারা, বিশেষ করে গোটা পশ্চিমবঙ্গ জুড়েই আছে, বিশেষ করে আমাদের শহুরাঞ্চলের লেবেলড শিক্ষিত মানুষরা তৃণমূলের ওপর থেকে মুখ ফিরিয়ে নিতে চাইছে, অনেকে ফিরিয়ে নিয়েছে, এবং তারা ডিসাইড করছে, দে আর ডিসাইডিং দ্যাট দে উইল ভোট ফর বিজেপি এগেনস্ট টিএমসি। এখানে দুটো কথা বলার আছে। प्रथम कथा होच्छे जे बीजेपी अगर गवर्नमेंट बनाए, ये आप चाहते हैं, तो टीएमसी हट जाएगा, तो बीजेपी सारा सीट नहीं जीत सकता। बीजेपी वेस्ट बंगाल में मोहम्मडन एरिया जहाँ पे ज़्यादा है वहाँ पे नहीं जीत सकता, ये सबको पता है। दूसरी बात, सबसे बड़ी बात क्या है, SIR स्पेशल इंटेंसिव रिविजन्स, SIR में SIR करने से पहले बीजेपी का लीडर शुभेंदु अधिकारी, जो कभी 3 बाटी गोश्त खाते थे, नमाज पढ़ते थे, वो शुभेंदु अधिकारी बीजेपी का अभी के लीडर ने बोला कि 1.5 करोड़ रोहिंग्या मुसलमान बंगाल में घुस गया है, इनको हटाना पड़ेगा, और इनको बीजेपी हटाएगा। कैसे? लीगली SIR करके। SIR में अभी तक 95 लाख लोगों नाम बात पड़े डिलीटेड। और एक नया वर्ड सुन रहा हूँ, UA, अंडर एजुकेशन, मतलब विचाराधीन। अरे भाई, दोषी के जो तुम्हारा विचाराधीन देखेছো, के दोषी?
কিভাবে দোষী? আন্ডার অ্যাডজুডিকেশন না হলে ডিলিটেড। তো বিজেপি কিন্তু একটা কর্পোরেটের মতো টার্গেট ধরে চলছিল যে 1.5 কোটি লোকের নাম বাদ দিতে হবে, তাহলে বিজেপি ক্ষমতায় চলে আসবে। এবং এটা বিজেপি সাপোর্টাররাই অনলি বিশ্বাস করেন, যারা রাজনীতি করেন তারা বিশ্বাস করেন না। कारण क्योंकि एक घर में 5 लोग हैं यहाँ पे, उनमें से 4 लोगों का नाम आया। जिस बाप का नाम 2001 में नहीं था, SIR 2001 में भी हुआ था, अगर सबको पता है तो, इतना खबर सब रखते हैं तो जिस घर में एक आदमी का नाम 2002 में 1 में नहीं था, उसका नाम अभी आ गया रिवाइज होके, लेकिन उस बाप और माँ के बेटी का या बेटे का नाम नहीं है। ये कैसे हो सकता है? ये तभी हो सकता है जब SIR सही तरीके से नहीं हुआ। আমাদের এখানে SIR ঠিক মতো করে হয়নি। এই কেস অনেকের বাড়িতে আছে। তো 95 লাখ, প্রায় 95 লাখই ধরছি, বা আরও যদি কমিয়ে দিই কিছুটা, 27 লাখ লোক ভোট দিতে পারবে, তো 60 লাখ ধরছি অ্যাপ্রক্স। এই 60 লাখ লোকের বাড়িতে ধরে নিচ্ছি 5টা করে মেম্বার, যারা দেখছে যে বিনা দোষে আমার বাড়ির একটা মেম্বার ভোট দিতে পারবে না। किसी भी दोष नहीं है, कोई भी दोष नहीं है। मेरे घर के एक इंसान वोट नहीं दे पाएंगे, एक मेंबर वोट नहीं दे पाएंगे, क्योंकि SIR में गलती से उनका नाम नहीं रहा। क्या वो लोग, क्या वो घर बीजेपी को वोट देंगे? এরকম 60 লাখ লোকের 5টা করে যদি আমি মেম্বার ধরি অ্যাভারেজে, তাহলে সংখ্যাটা গিয়ে দাঁড়াচ্ছে প্রায় 3 কোটি। আমি কিছু বাদ দিলাম, 2.5 कोटी বা 2 कोटी। वेस्ट बंगाल में टोटल वोटर है 6 करोड़। 6 कोटी ভোটার পশ্চিমবঙ্গে সমগ্রভাবে আছে। এর মধ্যে যদি 2.5 कोटी ভোটার, और তার মধ্যে ভোট দিতে পারবে 5 कोटी, इलेक्शन कमीशन बोलছে। तो 5 कोटी में अगर 2 से 2.5 करोड़ लोग बीजेपी के ऊपर इसलिए गुस्सा है क्योंकि SIR में गलती से उन्होंने उनके परिवार का किसी का नाम डिलीट किया या फिर UA अंडर एडजुडिकेशन में डाल दिया, तो 2.5 करोड़ वोट बीजेपी का हाथ से गया और TMC के पॉकेट में आ गया। तो बीजेपी का कोई चांस ही नहीं है यहाँ पे सरकार बनाने की। लेकिन है, बीजेपी को अगर बहुत सारा लोग वोट करे, क्योंकि जो हवा यहाँ पे है वो ये है कि तृणमूल को हटाना है। लोग तृणमूल के ऊपर गुस्सा है, नफ़रत कर रहे हैं और बीजेपी को लाना है, क्योंकि बीजेपी सरकार बना सकता है। ये 2 इलेक्शन 21 और 24 में जीरो में रहने वाला CPIM नहीं, चाहे कितना भी CPIM का अभी भी वामपंथी कम्युनिस्ट लोग यहाँ पे रहे, तो बीजेपी को वोट मिलेगा, लेकिन वो वोट कभी TMC से ज़्यादा सीट नहीं दिला पाएगा। अगर बीजेपी को TMC को हराना है तो कुछ जगह जहाँ पे बीजेपी का बिल्कुल जीतने का चांस नहीं है, जैसे कि कुछ मोहम्मदन एरिया हो गया, वहाँ पे ISF को छोड़ना पड़ेगा। अगर कुछ जगह जहाँ पे बीजेपी को बिल्कुल जीतने का चांसेस नहीं है, जैसे बहरमपुर, मुर्शिदाबाद, वहाँ पे कांग्रेस को छोड़ना पड़ेगा। और जैसे हमारा उत्तरपाड़ा और যাদবপুর এখানে বা পানিহাটি, এখানে CPIM কে ছাড়তে হবে, কারণ বিজেপি এখান থেকে জিততে পারবে না। বিজেপি তৃণমূলকে জেতাতে পারবে, 10-12% ভোট যদি লোক বিজেপিকে দিয়ে দেয়, সেই ভোটটাতে তৃণমূল CPIMকে হারিয়ে বেরিয়ে যেতে পারবে। বিজেপি তৃণমূলের B টিম হয়ে কাজ করতে পারবে, তৃণমূলকে হারাতে পারবে না। अब देखिए, सब कुछ लोगों के हाथ में है। लोग আমাদের কনস্টিটিউয়েন্সি, উত্তরপাড়া কনস্টিটিউয়েন্সিতে মীনাক্ষী মুখার্জিকে জেতাচ্ছে। আমাদের উত্তরপাড়া নিয়ে আমাদের চিন্তা নেই, কিন্তু মীনাক্ষী মুখার্জি ভোট পার্সেন্টেজ বাড়াতে আরও পারে যদি কিছু লোক, যারা বেকার দীপাঞ্জন চক্রবর্তীর মতো একটা আগাগোড়া মাথার চুল থেকে পায়ের নখ অবধি ফেক ক্যান্ডিডেটকে জেতাবে ভাবছে, যদি তারা মীনাক্ষী মুখার্জিকে ভোট দেয়। একমাত্র তখনই মীনাক্ষী মুখার্জির জেতাটা
10 দিন আগে থেকে সিকিওর হয়ে যেতে পারে। কারণ বিজেপিকে এখানে ভোট দিয়ে তৃণমূলকে জেতানো ছাড়া আর কিচ্ছু করার নেই। বিজেপি is not thinking about their vote percentage increase in West Bengal. They are thinking about seats. They are thinking about forming the government. So we should understand this mathematical situation, this statistical situation, and we should go and vote wisely after considering all these facts. আমি এতক্ষণ ধরে যে কথা বললাম এটা আমার কাছে টাইম ওয়েস্ট ছাড়া কিছু না। আগের দিনও একটা করেছি, আজকেও একটা করলাম। ধন্যবাদ।